Good afternoon, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss second topic, next topic of second chapter, rights and duties in the Indian Constitution. Today's topic is arrangements of fundamental rights in the Indian Constitution. So let us discuss this topic in details. So first fundamental right is right to equality. It covers our four articles 14 to 18. So article 14 is for equality before law. Article 14 guarantee to every person equality before law on equal protection on laws within the territory of India, means everybody is equal in front of law. And the constitution prohibits discrimination between persons placed in similar situation. And court judgment on article 14. In 1952, the Supreme Court, in the case of state of West Bengal and Anwar Ali, had stated that the requirement of article 14 is that स्टेट एक्शन शुड बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल. जो स्टेट के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई क्या है होनी चाहिए, वो उचित होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए और लॉजिकल होनी चाहिए. आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. Article 15 prohibits that the states of to discriminate against any citizen on ground of religion, race, caste, place, birth और any of them. मतलब किसी भी आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता. ये शो करता है आर्टिकल 15. एक्सेप्शनल केस क्या क्या है इसके अंदर. And also one can therefore be denied access to public places, restaurant, shops, wells and any other place maintained wholly or partly by state. मतलब किसी स्टेट के द्वारा कोई भी बनाई हुई कोई जगह है, पब्लिक प्लेस या कुछ भी हो, वहाँ पर जाने से रोका नहीं जा सकता. एक्सेप्शनल केस कौन से हैं? एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 15. स्पेशल प्रोविज़न कैन बी मेड फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन. औरतों और बच्चों के लिए एक विशेष प्रोविज़न बनाया जा गया है. एंड स्पेशल प्रोविज़न में बी मेड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ SC ST सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. इनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं. आर्टिकल 16 स्टैंड फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. समानता, समान अवसरों की समानता. सो आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है टू ऑल द सिटीजन्स इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जब रोजगार की बात आती है. सो थ्री रिस्ट्रिक्शंस ऑन आर्टिकल 16. पार्लियामेंट में मेक लॉस. जो संसद है कोई कानून बना सकती है प्रिस्क्राइबिंग रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू रेजिडेंस फॉर स्टेट एम्प्लॉयमेंट. राज्य के एम्प्लॉयमेंट के लिए कि जहाँ पे मतलब सपोज इफ़ यू आर लिविंग इन हरियाणा, सो देयर विल बी रिजर्वेशन फॉर यू. एंड इफ़ a person who is from other state will apply for the same job here, then there will be reservation for 2 or 3%. Maximum majority preference will be given to the citizen of Haryana. Second, state may reserve post for backward classes and having inadequate representation in the state. Article 17 untouchability abolished. So this article declare that the untouchability is abolished and its practice forbidden in any form. कि जो छुआछूत है इसको बंद कर दिया गया है. इसके किसी तरीके से इसको प्रयोग में लाना कानून का उल्लंघन है. एंड आर्टिकल 18 abolition of title. Means article 18 of constitution prohibits the state from conferring any title except those of military of academic distinction. इनको छोड़कर कोई भी टाइटल किसी को नहीं दिया जा सकता स्पेशल. एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ आर्टिकल 18. military and academic distinction like general, brigadier, professor and doctors are exempted from this provision. उनको इस चीज़ में छूट है. नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम. आर्टिकल 19 to 22. आर्टिकल 19 फंडामेंटल फ्रीडम. आर्टिकल 19 इंश्योर द इंडियन सिटीजन 6 फंडामेंटल फ्रीडम. ये 6 प्रकार की हमें
आधारभूत आज़ादी प्रदान करता है। फर्स्ट, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यू कैन स्पीक, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज़। सेकंड, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, without any ill will intention, you can gather anywhere. Third, freedom to form association or union, और fourth, freedom to travel in any part of the country, भारत के किसी भी हिस्से में हम जा सकते हैं, कोई भी यूनियन बना सकते हैं। फिफ्थ इज फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, जाकर वहाँ पे सेटलमेंट कर सकते हैं अपनी। एंड सिक्स पार्ट, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को अपना सकते हैं। और कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस, कोई भी बिजनेस है व्यापार हम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम, सस्पेंशन कैसे होती है फंडामेंटल फ्रीडम्स की। The fundamental freedoms guaranteed under Article 19 of the Indian Constitution remain suspended during the national emergency। अगर आपातकालीन की स्थिति हो तब इनको सस्पेंड किया जा सकता है। एंड सिमिलरली देयर आर सम अदर एक्सेप्शंस अंडर आर्टिकल 19। दिस इंक्लूड्स यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट, जब इसका सवाल हो राष्ट्रीय एकता का, तब भी दिक्कत ऐसा कुछ उनको सस्पेंड किया जा सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट टू चेक डिफेमेशन एंड डिसरिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट, और कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट हो तब भी इसको सस्पेंड किया जा सकता है। एंड टू चेक इनकरेजमेंट टू क्राइम, अगर बढ़ते हुए क्राइम को रोकना हो तब भी सस्पेंड किया जा सकता है, सस्पेंशन हो सकती है फंडामेंटल फ्रीडम्स की। एंड फॉर इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंशन इन आर्टिकल 39B एंड 39C। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसिव क्राइम के रिगार्डिंग जो सुरक्षा मिलती है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्ट्स पर्सन, यह व्यक्ति को बचाव करता है अक्यूज और पनिश्ड ऑफ एन ऑफेंस, किसी क्राइम के लिए। एंड इट हैज़ थ्री प्रोविजन, इसके लिए तीन व्यवस्थाएं होती हैं। नो पर्सन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ सम लॉ, किसी भी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन करने के अलावा किसी तरीके से पनिश नहीं किया जा सकता। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। नो पर्सन शैल बी फोर्स्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, किसी भी व्यक्ति को खुद के अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दिस आर्टिकल डिक्लेयर दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, किसी भी व्यक्ति को उसकी ज़िंदगी से अलग नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ विच इज़ फेयर, जैसे ही संविधान ने कुछ कानून बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग। मीन्स किसी भी व्यक्ति को हम मजबूर नहीं कर सकते कि वो सुसाइड कर ले। आर्टिकल 21A, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, मीन्स इन दिस आर्टिकल न्यू आर्टिकल 21A विच प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन to all children at the age of 6 to 14. Actually, the 86th amendment inserted a new article. This is called 21A. And Article 22, safeguard for arrested person. The Constitution provides 3 safeguards upon a person arrested under ordinary circumstances. अगर किसी व्यक्ति को कुछ परिस्थितियों में अरेस्ट किया गया है उसके रिगार्डिंग 3 प्रोविजन होते हैं सेफ गार्ड के। फर्स्ट, नो पर्सन शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड द रीजन ऑफ हिज अरेस्ट, किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताए बिना हम उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। सेकंड, द कंसर्न्ड पर्सन शैल हैव द राइट टू कंसल्ट ए लॉयर ऑफ हिज चॉइस, जो जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया वो अपनी मर्जी से किसी भी वकील को हायर कर सकता है। थर्ड, the arrested person has to be produced before the nearest magistrate within 24 hours of such an arrest, पकड़े हुए अपराधी को 24 घंटे के अंदर नज़दीक के न्यायाधीश के सामने उपस्थित करना पड़ता है। एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 22, दीज सेफ गार्ड्स आर नॉट अवेलेबल टू अलायंस, फॉरनर्स के लिए ये जो आर्टिकल्स हैं ये जो प्रोसीजर है ये अवेलेबल नहीं होते। एंड दीज राइट्स डू नॉट अप्लाई टू पर्सनस डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। Right against exploitation means 23rd to 24th. Article 23rd, prohibition of traffic.
आर्टिकल 23 प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, इट बैन्स बेगरी एंड फोर्स लेबर्स। ये बेगरी या फोर्स लेबर को बंद करता है, उस पर बैन लगाता है कि हम किसी बच्चे से मजदूरी नहीं करवा सकते। इट इंक्लूड्स ट्रैफिक इन वीमेन एंड गर्ल्स फॉर इमोरल पर्पस। जब औरतों लड़कियों को गलत तरीके के लिए यूज़ किया जाता है उसके ऊपर ही बैन करता है। द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट कॉल्स पेमेंट ऑफ लेस देन मिनिमम वेजेस ऑल्सो एज फोर्स लेबर। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14। कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम उम्र का है उसको किसी भी कारखाने में काम पे नहीं रखा जा सकता और किसी फैक्ट्री वगैरह में और किसी माइन में। एंड नेक्स्ट आर्टिकल 25 टू 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धर्म की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। आर्टिकल 25 गारंटी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। एक्सेप्शन रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड ऑन फ्रीडम ऑफ कंसाइंस बाय द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ मोरालिटी। नैतिकता के तौर पर हम उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर के कारण। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। हम किसी भी चैरिटेबल पर्पस से हम किसी भी इंस्टीट्यूशन को मेंटेन कर सकते हैं, धार्मिक इंस्टीट्यूशन को। आर्टिकल 27 नो टैक्स फॉर रिलीजन, कि हमें किसी इफ़ यू प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजन देन देयर इज़ नो नीड टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्स। आर्टिकल 28 बैन ऑन द रिलीजन इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल। बैन ऑन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन shall be provided in any educational institution run by government. No religious instructions shall be provided in any educational institution wholly maintained by government funds। कि government didn't take the side of any particular religion, government respect all religions equally। And next one is cultural and education rights 29 to 30 conserve language script and culture। The right Article 29 refers to that minorities to conserve their distinct language script and culture। जो माइनॉरिटी वो अपनी भाषा को बचा के रख सकती है, संस्कृति को बचा सकती है, इस पर उनको कोई बैन नहीं किया जा सकता। एंड आर्टिकल 30 एस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30 गिव्स द राइट टू माइनॉरिटीज। ये अल्पसंख्यक को अधिकार देती है टू एस्टेब्लिश सेटअप करने का एंड एडमिनिस्टर इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। अपनी मर्जी का कोई भी इंस्टीट्यूशन वो रन कर सकते हैं। सिमिलरली वाइल ग्रांटिंग फाइनेंशियल एड टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन एनी ग्राउंड। बल्कि सरकार भी क्या करेगी, उन्हें कुछ हेल्प करेगी इस टाइप के इंस्टीट्यूशन को रन करने में और इस्टेब्लिश करने में। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। आर्टिकल 32 Article 32 Judiciary as custodian of right, Supreme Court and High Court। So Article 32 guarantee the right to move the Supreme Court for the enforcement of right given by Part 3 of the Constitution। कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकार छीने जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकता है। अंडर आर्टिकल 226 a person can move High Court for enforcement of his fundamental rights। So the writs include, so there are some writs। First writ is writ of habeas corpus। This is a Latin word, habeas corpus। It means you may have the body। It is a remedy for a person detained wrongfully। इसको गलत तरीके से अरेस्ट कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इशू दिस writ when a person is illegally arrested for or detained बाय स्टेट। जब किसी व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से अरेस्ट किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी कर सकती है। इफ़ द कॉज ऑफ अरेस्ट इज इनसफिशिएंट, अगर उसको अरेस्ट करने का कारण अपर्याप्त है तो द कोर्ट वुड ऑर्डर हिज रिलीज, तो कोर्ट ऑर्डर देगी उसको आज़ाद करने के। नेक्स्ट है रिट ऑफ मैंडेमस। इट इज़ ऑल्सो लैटिन वर्ड, इट मीन्स वी कमांड। द रिट इज़ इशूड व्हेन ए पर्सन files a petition against any public official or unit which is not performing the duty। अगर कोई ऑफिसर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा तो कोई पब्लिक पर्सन, कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन एक रिट फाइल कर सकता है अगेंस्ट दैट पर्सन। नेक्स्ट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ए रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड टू ए सबऑर्डिनेट कोर्ट
to them to keep within the limit of their authority. ये इस रिट ऑफ प्रोहिबिशन, सख्त मनाही की एक रिट लगाई जा सकती है, इसको इशू किया जाता है कि कोर्ट के द्वारा कि इफ़ एनी अथॉरिटी इज़ वर्क नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू हिज रूल एंड रेगुलेशन, अगर वो अपने कानून व्यवस्था के दायरे के अंदर रहकर वर्क नहीं करती तो. एंड रिट ऑफ certiorari. The word certiorari means to be more fully informed. By this writ, lower court is asked to hand over the record to a particular case to the higher court. इसके द्वारा ये कहा जा सकता है कोई भी लोअर कोर्ट है, जो सपोज कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसको आदेश दिया जा सकता है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अपना जो रिकॉर्ड है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड है, वो उसको हैंड ओवर कर सकती है. सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव डिस्कस मैनी थिंग्स. So we discuss this topic in brief detail. So I request you to listen it twice and thrice and read it very nicely to enjoy this topic. So till then, thanks and have a nice day.